علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ واختلاف ألسنتکم وألوانکم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ مجلس علوم عصریہ اور جدیدہ سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب کے کرم فرما ہمارے شیخ محترم لائق تحسین ہے کہ حضرت والا نے اس وقت بطور خاص ہم تمام حضرات کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی جہاں تک فیض العلوم میں علوم عصریہ، انگلش، میتھمیٹکس، وگیان، اس کی تعلیم کا تعلق ہے تو یہ بات ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ یہ کام آج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کو تعجب ہوگا حضرت والا کی دور اندیشی پر کہ اس پورے علاقے کے اندر اور دور تک بھی جب مدارس والے اپنے مدرسوں کی مانیتا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت کی مانیتا اور گورنمنٹ سے منظوری کے کاغذ مدرسہ فیض العلوم کے پاس موجود ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے حضرت والا سے معلوم کیا، دفتر کے اندر ایک سرٹیفکیٹ ٹنگا ہوا ہے دیوار میں شیشے کے اندر، اس کو میں نے پڑھا تو وہ 5ویں کی منظوری کا کاغذ ہے اور غالباً 1985 کا ہے غالباً۔ حضرت سے میں نے ادباً معلوم کیا تو فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی مانیتا کا کاغذ ہے جب مانیتا میرٹھ سے ہوتی، آج تو مانیتا دھامپور سے ہو جاتی ہے، بجنور سے ہو جاتی ہے۔ اس وقت مدرسوں کی منظوری 5ویں تک کی میرٹھ سے ہوا کرتی تھی۔ 1985 میں یہ تصور کرنا کہ مدرسہ منظور ہونا چاہیے اور طلبہ اور طالبات کے پاس میں 5th کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یہ یقیناً حضرت والا کی دور اندیشی نہیں، انتہائی دور اندیشی کی علامت ہے۔ اب جو کرنٹلی حالات ہیں پوری دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، نہ کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان۔ سب سے زیادہ اسپوکن لینگویج اگر کوئی ہے بولی جانے والی زبان تو وہ چائنیز ہے۔ چائنیز لینگویج کو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 150 کروڑ ہے۔ انگلش کے بولنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہر زمانے کے اندر جس لینگویج اور زبان میں تحقیقات سب سے زیادہ ہوتی ہیں وہی زبان پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی ہے، اسی زبان کا سکہ ہوتا ہے۔ آج انگلش کا دور ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ انگلش کا دور ہر زمانے کے اندر رہا ہے۔ کبھی تقریباً 800 سال تک عربی کا دور رہا، جغرافی کی کتاب، میتھمیٹکس کی کتاب، علوم عربیہ، ادب، لٹریچر، یہاں تک کہ موسیقی کی کتابیں بھی عربی زبان میں موجود ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب عربی کا سکہ چلتا تھا اور 800 سال تک عربی زبان انٹرنیشنل لینگویج رہی، ساری تحقیقات عربی لینگویج میں ہی ہوا کرتی تھی۔ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر اردو کے ہندو شاعر موجود ہیں، اسی طریقے سے عہد عباسی کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے عیسائی اور ایسے قبطی شعراء موجود ہیں جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس وقت مایہ ناز عربی اسکالر اور عربی شاعر اور ادیب ہوا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زوال ہوا مسلمانوں کا تو لینگویج کا بھی زوال ہوا، اس کے بعد رشین لینگویج کا دور شروع ہوا، اس کے بعد ہندوستان کے اندر فارسی کو دور شروع ہوا۔ فارسی کا جب دور شروع ہوا تو کچہری میں بھی، پولیس والے میں بھی، یہاں تک کہ جو ہندو راجا ہوا کرتے تھے وہ بھی سب فارسی میں خط لکھا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور
हिंदू राजा गुजरा है, महाराजा मानसिंह, वो अंग्रेज फारसी का बहुत बड़ा शायर और अदीब गुजरा है। यहां तक कि उसने अहद अकबरी के अंदर जहां बहुत सारी किताबों के फारसी में तर्जुमे किए गए, तो उस जमाने के अंदर वेद का जो सबसे मोतबर तर्जुमा है वो महाराजा मानसिंह का किया हुआ है। लैंग्वेज जब पूरी दुनिया के अंदर चलती है तो उसको किसी मखसूस मजहब के लोग नहीं सीखते हैं, उसको उलमा भी सीखते हैं, उसको पंडित जी भी सीखते हैं, उसको अंग्रेज भी सीखते हैं, उसको सब लोग सीखते हैं। फिर उसके बाद जब मुसलमानों का जवाल हिंदुस्तान में शुरू हुआ, एक कौम आई अंग्रेज के नाम से। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी का बोलबाला रहा। लेकिन हमारे उलमा ये सोचने की बात है कि उलमा ने अंग्रेजी की मुखालफत क्यों करी। अंग्रेज ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर इतने मजालिम ढाए और उतने ईसाइयत कबूल करने पर इतना मजबूर किया, सैकड़ों मदरसों को मिसमार किया, हजारों उलमा को फांसी दी। अंग्रेज कौम की इन हरकतों को देखकर हमारे उलमा को न सिर्फ ये कि अंग्रेज से नफरत हुई, अंग्रेज कौम से और अंग्रेज कास्ट से और ईसाई मजहब से नफरत हो गई, बल्कि उनकी लैंग्वेज से भी नफरत हो गई। ये जो पूरा मामला नफरत का हमारे उलमा के अंदर कुछ वक्त तक पाया गया कि वो अंग्रेजी बालों से भी और अंग्रेजी जबान से भी और अंग्रेजी कल्चर से भी दूर रहने को कहते थे। ये उसी वक्त के हालात थे जब मुल्क में अंग्रेजों ने मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म किया। लेकिन उस जमाने के अंदर भी आप देखें, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने सबसे पहले फतवा दिया था कि इंग्लिश सीखना हराम है। हजरत शाह साहब के बाद अगर कोई शख्सियत हमें नजर आती है जो इंग्लिश के मामले में इंतहाई नरम है और उलूम असरिया के बारे में बाकायदा कहते हैं कि उलमा को चाहिए कि वो दानिशगाहों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं और वहां जाकर तालीम हासिल करें, बल्कि उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि मैं तो जय्यद आलिम उसी को तस्लीम करूंगा जो मदरसे से फारिग होने के बाद उलूम असरिया को हासिल करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाए ताकि उसके इल्म के अंदर निखार आए। ये जो कौल है ये हुज्जतुल इस्लाम इमाम मौलाना कासिम अल्लामा नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सवाने हयात में बाकायदा लिखा हुआ हजरत का नजरिया। फरमाते हैं कि हर हाल में लिखना चाहिए। और आप हजरत को शायद ताज्जुब होगा कि हजरत नानोतवी का जो सबसे ज्यादा फेवरेट और दिलचस्प सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था। वो बाकायदा उनके उस्ताद थे प्रोफेसर राम शास्त्री। उन्होंने उनसे पूरी तालीम हासिल की। वो पहले हिंदू थे, बाद में ईसाई बन गए थे, उसके बाद मुल्हिद बन गए थे। बहरहाल तो उस वक्त था ये मामला। आज हमारे दौर के अंदर इंग्लिश पूरी दुनिया के अंदर राइज है, क्योंकि सारी की सारी तहकीकात अमेरिका के अंदर होती हैं या यूरोप के अंदर होती हैं, और यूरोप की जो मुत्तफिका लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। हवाई जहाज भी बनता है तो वही बनता है, कोई तहकीक होती है तो वही होती है, चांद पर भी जाते हैं तो वही जाते हैं। तो जब वही जाते हैं और सारी लैंग्वेज के अंदर तहरीरों को वही लिखते हैं तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश में लिखेंगे। तो इस वक्त इंग्लिश सीखना ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए या हमारा ज़ौक़ समझ लीजिए। जबान की बुनियाद पर हम किसी जबान से नफरत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जबानें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। यही वजह है कि आप पूरी दुनिया की जबानें जिनकी ग्रामर मौजूद है, जिनकी तादाद तकरीबन 150 के करीब है, 150 ऐसी जबानें दुनिया के अंदर मौजूद है जिनकी बाकायदा ग्रामर है। बहुत सारी जबानें ऐसी होती है जिनका ग्रामर नहीं होता है, जैसे हरियाणवी जबान है उसकी कोई ग्रामर नहीं है, मेवाती जबान है उसकी कोई ग्रामर नहीं होती है। इसी तरीके से कुछ गुजर जबानें बोलते हैं उसकी कोई ग्रामर नहीं होती है, डोगरी को भी ग्रामर नहीं होती है। तो ग्रामर होने वाली जबानों की तादाद 150 है। आपको ताज्जुब होगा कि उनकी आप अगर इल्मु नहू इल्मु सर्फ पढ़े उन जबानों की तो तकरीबन अरबी जैसी ही है और उर्दू जैसी है। जैसे अरबी के अंदर जमाने 3 होते हैं, इंग्लिश में भी 3 होते हैं, 4 तो कभी नहीं हो सकते। इसी तरीके से हिंदी में भी 3 ही जमाने होते हैं। जिस तरीके से हरफों को अरबी में 3 किस्मों में बांटा गया, इसमें फेल हर्फ, इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, इसी तरीके से अरबी में भी है, इसी तरीके से फ्रेंच में भी है, चाइनीज में भी है। तो जबानें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमिन आयातिही वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ये अल्लाह ताला की ही निशानी है कि उसने तुम्हारी लैंग्वेज भी अलग अलग बनाई और तुम्हारे रंग भी अलग अलग बनाए। बहरहाल ये हजरत वाला की तवज्जो। और मैं एक बात सोचता हूं कि हमारे जमाने के अंदर उम्र के जिस पड़ाव में हमारे हजरत वाला है, अगर ये बात कहीं और रखी जाती तो वो शायद सुनने के बाद में उसको रिजेक्ट कर देते और ये कह देते भाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, कोई खास चीज नहीं है। लेकिन हमें हजरत वालों को दुआएं देनी चाहिए और दराजी उम्र के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हजरत वाला का साया तादिर हमारे सिरों पर कायम और दायम रखे। हजरत ने इसको कबूल किया और ये फरमाया कि ये काम भी इंतहाई सलीके के साथ होना चाहिए, इंतहाई सलीके के साथ में ये काम होना चाहिए। इसके लिए एक निजाम बना और उस निजाम के अंदर तकरीबन थोड़ा थोड़ा
सभी को शामिल किया गया। मैंने पहले भी बताया कि ये निज़ाम मदरसा फैज़ुल उलूम के लिए नया नहीं है। फैज़ुल उलूम ने हर ज़माने में वक्त का लिहाज रखते हुए तकरीबन काम किया है। और मैंने ये गोशगुजार कराया कि जिस वक्त मदरसे वाले मान्यता के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त की मान्यता फैज़ुल उलूम के पास में है। तो ये अपडेशन की पहचान है। अब जो तरतीब बनी वो ये बनी कि अरबी अव्वल से चाहरुम तक के तलबा वो भी इंग्लिश पढ़ेंगे, जो तलबा हिफ्ज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी जबान से वाबस्ता रहें। जामिया आयशा के अंदर भी इस चीज को दाखिले निसाब किया गया है, नादर वालों के लिए भी इसको दाखिले निसाब किया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों में ये एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इससे हमारी दीनी तालीम मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से तालीम मुतासिर होती है, या अरबी पढ़ने वाले तलबा काम नहीं करते हैं अरबी का और ये कहते हैं कि इंग्लिश की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, अपना नहव का याद नहीं कर पाया, सर्फ का याद नहीं कर पाया, मंतिक का याद नहीं कर पाया, तो तलबा अजीज ये एक खामी होगी और ये बेहतर नहीं रहेगा। इसलिए तमाम उलूम को हासिल किया जाए, किसी एक की वजह से किसी में रुकावट नहीं पैदा हो। मैं कुछ ज्यादा ही गुफ्तगू मैंने हजरत वाला के सामने कर ली है, हजरत का हुक्म था, वरना तो इतनी ज्यादा गुफ्तगू बिल्कुल भी हजरत के सामने नहीं होनी चाहिए। इस दरमियान कोई गलती हुई तो मैं हजरत से माफी चाहता हूँ। बाकी